Hi everyone, I am Diksha, PhD student at IIT Delhi Department of Mathematics. So, as we were discussing relations and functions, so we were done with relations and we kind of started uh, functions. We just introduced what functions are. So, okay, so we'll delve into more details today. So I'll just quickly recall what we did in the last lecture. So we started with the Cartesian product. We started with the Cartesian product of two sets A cross B. Then we moved to which are nothing but the ordered pairs from A and B, where A belongs to A and B belongs to B. And then we also talked about the cardinality of A cross B, which is and A and B. And then we moved to relations, which are nothing but a subset of the relation R from A to B is just a subset of A cross B, where you are given some relation between the first element and the second element, and this is called the domain. This is called the codomain, and the second element of the ordered pair in the relation is called the range, right? So now today we'll talk about function. So I started with what a function is. So I'll again maybe recall. So a relation is a special type of a function. Just remember that. Okay. So a relation f, we usually denote a function by f. A relation f from A to, or I should say, a set A to a set B is said to be a function. This is the abbreviation of said to be. Said to be a function if every element of set A is has only one and only one image. Also, again, if A and B belongs to some relation, then B is called the image of A, right? So, if every element of set A has only one and only one image in the set, like I told you that if this is some set A and this is some say set B, then and if we are given some relation, then that relation is said to be a function if and only if तभी और तभी जब हर element of A is related to only one element of B. Meaning that this cannot happen. That this is going to this element, this is not a function. And remember that what is the definition says that every element of A has to be related every to only and only one image. Okay, तो हर एलिमेंट ए का अगर सिर्फ और सिर्फ एक इमेज से रिलेटेड है तो हम उस फंक्शन को क्या उस रिलेशन को क्या बोल देंगे दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऑलराइट देन again what is important here is that A is called the domain and similarly as in the relation with it B is the codomain. We'll move to range later. All right. Then I also mentioned that if uh, if if A and B belongs to the relation R or the function F, we write it as Fa equals to Fp. Then B is called the image. मतलब F ने A को कहाँ मैप कर दिया B पे. तो B क्या होगी image of A under the function F, right? And A is called the free image of B under. Okay, so just try to remember all these notations because these are will be very helpful
when we move later. Okay. All right. So just a simple example. I also gave some examples and exercises in the last lecture. Please try and sort those. So you have to determine if you are given a relation, say 2, 2, 2, 4, 3, 3, and 3, 4. Is it a function? No, right? Why? Just think, give me a second. Just think, why is it not? Just apply the definition. Because 2 here is related to two elements in some, say, codomain, which is 2 and 4, which is not possible. So this is not a function, right? However, if I define R to be, say, some 1, 2, 3, 1, and 4, 2, then this is a function, because function from, we can say that if I take A to be set 1, 3, 4, B to be the set to 1, 2, so only 2 and 1, then this is a function. So if you remember, I said that two elements of the set A can go to the same element. This is possible. Don't get confused. I gave you the analogy that just try to remember it like that two bullets can go to the same point, but one bullet cannot go to two different points. This is not possible. Okay, so here you see that 1 and 4 has the same image 2, but it is still a function. Okay, it is not defining the definition. There is no contradiction to the definition of function. Okay, just remember that. All right. Now, some okay. So now some very important class of functions, or I would describe some functions and how they look like. The graph. So the graph is nothing. Graph of f, if I write it very mathematically, is nothing but x comma fx, where x belongs to the domain of A. Okay. तो हम बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे x और उसको मैप करेंगे fx पे. जब मैं उसको प्लॉट करूंगी इन सब पॉइंट्स को x fx, okay, and I join them or something, then that image or that diagram, what I get is called a graph. Just what we have already seen, you have plotted it in your 9th and 10th standards. That is graph. So what we'll do, we'll do some examples of functions and plot their graphs, because these functions are very, very important, and the permutation and combination of these functions appear in mathematics all the time. So it's very important for you to understand and see and remember, I mean, that how these graphs, how these the graph of these functions look like. So the first example, the some graphs. Okay, before that, if f is a function, then range of f we will say is what are elements fx, like we used to do in relation, that if r is the relation a b, say a1 b1 a2 b2, then we used to call b1 b2 so on up to as the image. Similarly range क्या होगी, fx वो सारे पॉइंट्स उठाऊंगी मैं और उनको डोमेन के पॉइंट्स उठाऊंगी, एफ लगाऊंगी उन पॉइंट्स पे, जो जो पॉइंट्स आएंगे एफ लगाने के बाद उसको मैं क्या कह दूंगी, उस सेट को मैं बोल दूंगी रेंज. मतलब एफ एक्स, और एक्स कहाँ वेरी करेगा, डोमेन ऑफ एफ. ओके, दिस इज द रेंज. ओके, एंड ऑफ कोर्स अगेन रेंज इज अ, अब सिंस फंक्शन कहाँ से कहाँ है, डोमेन टू को डोमेन, बट जरूरी नहीं है कि को डोमेन का हर एलिमेंट रेंज में हो. सो बट ऑफ कोर्स रेंज of f is a subset of codomain of
F, like I mentioned it for the relation as well. Okay. All right. So we'll move to some functions. And their graphs. Okay. So the first very simple function which comes to your mind should be, I mean, this and some other also constant function. Also, I will usually write function as abbreviation function to the power n. Okay, just notation. Constant function. So, क्या बोलूंगी? If R is a set of real numbers, okay, so maybe before that I should say what a real valued function is. A function which has either R or one of its subsets as the range, then that function is called real valued function. मतलब कि अगर f कोई है डोमेन में और वो कहीं पे जा रहा है सम से d विच इज अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, मतलब हर एलिमेंट कहाँ मैप हो रहा है किसी ना किसी रियल नंबर में, तब मैं उस फंक्शन को क्या बोल दूंगी? रियल वैल्यू. It's as it is very clear from the name itself. Also, if the domain of f is either R or a subset of R, then f is called real function. एक है real valued और एक है real. The domain R है subset है the real function और the range है R है उसका subset तो real valued function. Alright. Okay, so one of the examples of this can be fx equals 3x plus 2. Just a linear function. 3x plus 2. So this is a function, right? So I can define it from R to R. Because I can take any value of x from real number. This function will be defined well defined for all x belonging to R. For all, this is the denotation and belong. So this will be defined for all. So this function is a real function and इसके जो वैल्यूज आएंगी जब मैं x को r में लूंगी तो भी वो रियल में ही आएंगी, तो उसका मतलब क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन. Also note that I can define the same function on natural numbers also. मतलब f को मैं n से r पर भी डिफाइन कर सकती हूँ, राइट? कि अगर मैं कोई नेचुरल नंबर लूंगी मतलब फ्रॉम द सेट 1 to up to infinity, तो भी ये फंक्शन रियल वैल्यूड ही रहेगा, राइट? इनफैक्ट इसकी रेंज क्या होगी? रेंज इज ऑल्सो n, right? Or maybe you should say not a whole of n, range is contained in n, because मैं यहाँ कुछ भी रियल वैल्यू नेचुरल नंबर डालूंगी तो मेरे पास दो नेचुरल नंबर प्लस करने पे नेचुरल नंबर ही आएगा. तो this function can also be written from n to n. Okay. If you don't understand this, don't bother. Not anything important. I'm just trying to say that if f is a function from R to R, I can define the same function on a subset of R as well. वहां पे भी वो डिफाइंड है क्योंकि वो पूरे R पे डिफाइंड है तो उसके सबसेट पे भी डिफाइंड है. okay? और डिफाइंड है मतलब क्या है? When defined है मतलब its range is real and finite. मतलब कुछ imagine or this types, okay, I don't think if you know, but कुछ
आयोटा टाइप का नहीं आ रहा है, तो इमेजिनरी वैल्यूज, और इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी नहीं हो रहा, अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइक नॉट लाइक 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट हैपनिंग, और कॉम्प्लेक्स, नो, these scenarios are not occurring. Okay. Okay, now let's move to the first type of function, which is very easy, that constant function. तो constant function क्या है? अगर मैं f लूँ from R to R and define करूँ fx to be some constant, right? मतलब हर x के लिए मैं हर x जो सपोज, तो ये कोई ये रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है, तो हर x को मैं मैप, और ये c कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा रियल लाइन पे, तो हर x को मैं मैप कर रही हूँ c पे, मतलब ये अंडर f हर x कहाँ जा रहा है मेरा, एक कांस्टेंट c पे, दैट्स व्हाई, मतलब x के साथ f की fx की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हर x के लिए f की वैल्यू सेम रह रही है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन है। और ऑफ कोर्स कैसे दिखेगा ये, c कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हर x के लिए ये सेम सिर्फ ये वैल्यू ले रहा है c, ओके, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ऑलराइट, x axis y axis, c belongs to r, c less than or तो नीचे आ जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट अगेन अ वेरी ट्रिवियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी क्या है? एज द नेम इज सजेस्टिंग, इफ r is again the set of real numbers, we are defining f from r to r such that fx कैसा है, x, मतलब जो f है x पे कोई भी चेंज नहीं ला रहा है, सेम रख रहा है, आइडेंटिकल रख रहा है, जो मैंने f में इनपुट दिया आउटपुट भी सेम आ रहा है, तो मतलब f क्या है, इमेज, f क्या दे रहा है, आइडेंटिकल इमेज, जो मैंने डाला उसमें वही वापस मुझे दे रहा है, राइट, सो दैट इज द आइडेंटिटी। सो हाउ विल इट लुक लाइक, तो पूरे आर के लिए डिफाइन कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करूंगी, 0 1 2 3 0, नहीं सॉरी, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 5, ठीक है। तो x, तो मतलब पॉइंट्स कैसे दिखेंगे, जैसे आप लोग 9th-10th में कर रहे थे, x यहाँ लिया, fx यहाँ लिया, दिस प्लॉट सम ऑफ द पॉइंट्स एंड फिर जॉइन, क्योंकि हम पूरे r में कर रहे हैं तो सेम होगा। तो x को सपोज 1 लिया, तो fx भी क्या होगा, अगर x 1 है तो fx भी क्या है 1, x 2 है तो fx भी क्या है 2, x 3 है तो fx भी क्या है 3। तो सिमिलरली माइनस के लिए कर सकते हो, तो मेरे पास आएगा, एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आया 1,1, सेकेंड पॉइंट 2,2, 3,3, सिमिलरली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, right, I'm sorry for the bad drawing, but you know, right, this is a straight line, oh very, it should pass through 0, so and this can go to infinity, right, because हम हर x के लिए प्लॉट कर सकते हैं और वो इंफिनिटी तक जा सकते हैं, और
just to remember that it looks like this is your identity. Okay, a straight line passing through the origin, क्योंकि जीरो पे क्या है, जीरो 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 भी पॉइंट है जो जहां से ग्राफ पास करेगा. Okay, so these are two very trivial functions. Okay, so साथ साथ हम डोमेन और रेंज की भी बात करते रहते हैं. यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन क्या है ऊपर हर आर के लिए डिफाइंड है. कोर डोमेन क्या है, आर. और रेंज क्या है, रेंज क्या है, एफ एक्स बिलोंगिंग टू आर. और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स. तो ये क्या, ये सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब पूरा का पूरा रियल, राइट. और इधर क्या है, डोमेन डोमेन अगेन आर, कोर डोमेन अगेन आर, रियल वैल्यूड है तो पूरा हमने लिया था. और लेकिन रेंज क्या है, सिर्फ वो सब पॉइंट जहाँ पे वो सब पॉइंट जो एफ की इमेज है, मतलब किसी ना किसी पॉइंट की इमेज है फ्रॉम द डोमेन, मतलब वो सारे सेट एफ एक्स और एक्स को हमें कर रहा है इन द डोमेन. और डोमेन क्या है, आर. और एफ एक्स क्या है, बस सी है, राइट. हर हर एक्स के लिए एफ एक्स का सी. तो रेंज क्या है, द सिंगलटन सेट सी. रेंज इज जस्ट द सिंगलटन सेट सी, राइट. और यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन की एग्जांपल क्या हो सकती है, एफ एक्स इक्वल्स टू से -5. ये कैसा होगा, -5 अगर सपोज ये है तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स -5. Okay. Okay. The third type of function which occurs all the time, and you have already seen them, polynomial. कैसे define a polynomial? A function f from R to R is said to be a polynomial. So it's said to be a polynomial function if for each x in R, हर x R के लिए मैं एफ एक्स कैसा लिख रही हूँ, एफ एक्स कैसा है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस so on up to a n x n, where n is a non-negative. Don't get intimidated by the definition. I'll explain, break it down for you. But all these elements I'm writing is very important to define what we call polynomial. Okay, it's a non-negative integer. And what are ai's? And a naught, a1, a2, so on up to an belongs to up. तो क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल कौन से फंक्शन को करता है, वो सारे फंक्शंस जो कैसे दिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू सम constant multiple of powers of x and the linear combination. Not linear, just forget it. Not and just adding them. मैंने मल्टीप्लाई करा x की पावर से, पॉजिटिव पावर से और इंटीग्रल पावर से. यहाँ पे मैं तो नोट क्या करने की चीज है कि यहाँ पे x पावर ऑफ x, just very roughly I'm writing power of x cannot be negative or fraction. Okay, and these all and these coefficients of x, इसको क्या बोलते हैं हम, coefficient of x क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू. और ये n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर.
और इसको n को जो सबसे बड़ी पावर होगी x की उसको क्या बोल देते हैं हम, डिग्री। और f कहाँ से कहाँ है, r से r, मतलब किसी भी x के लिए मैं यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन ये fx डिफाइन कर सकती हूँ और ये वेल डिफाइंड होगा, मतलब इसमें कुछ अगेन इंफिनिटी नहीं आ रहा, 0/0 नॉट डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा किसी भी r के लिए अगर मैं ये सब कंडीशन लूंगी कि x की पावर इंटीजर है और ai रियल वैल्यू है। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स, very simple example of polynomial function can be fx equal x square. So you have already plotted this, है ना, in your 9-10 standards that this is a parabola which will look like this, right? So this is a polynomial क्योंकि अब अगर आप ऊपर वाले डेफिनेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे a नॉट क्या है, a नॉट कांस्टेंट है, इसके साथ x का कोई भी पावर नहीं और यहाँ पे a नॉट नहीं है, तो यहाँ पे a नॉट क्या है, 0। a1 क्या है, 0, x का कोएफिशिएंट नहीं है, राइट? ए नॉट ए 0 हो सकता है क्योंकि वो रियल वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि हर ए की कोई वैल्यू होनी चाहिए, दे कैन बी 0। और a2 क्या है, 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, राइट? और बाकी सब ai इज भी 0, so this is a second order polynomial, or the degree of this polynomial is 2, right? Okay, so this was a very simple example. One more example can be fx equal 3x square plus 5x plus 4, और यहाँ पे shift to 3x। okay, this is again a polynomial, इसमें a नॉट क्या है, 4, a1 क्या है, 5, a2 क्या है, 0, a3 क्या है, 3, और उसके आगे भी सब 0। This is a polynomial of degree 3, right? Now see that if fx equals x to the power 2/3 plus 5, is it a polynomial? No, because x की क्या पावर है, फ्रैक्शनल, बट हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि x की हर पावर क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल। क्या x स्क्वायर xn और n भी क्या है, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली fx इक्वल्स x minus 2 plus 3x square plus 5x plus 1 is not a polynomial because यहाँ पे x की पावर क्या है, नेगेटिव। This is again not a polynomial, right? So depending upon what the polynomial is, there will be you can plot the graphs like you used to do. Take some values and just combine, like fx equals to x squared. So depending upon different polynomials, you'll have different graphs. Okay, so this was about a polynomial type of function. And next, a function which is found by two polynomials or rational function or rational. Okay, so what are rational functions? This is number 4. The rational functions are functions of the form fx by gx, where fx and gx कैसे दिख रहे हैं, fx and gx are polynomial functions. Okay? But now there has to be a condition, what, that this function is defined only for those x where gx is non-zero, because जैसे वो जीरो हुआ तो मेरे पास कैसी फॉर्म बन जाएगी, 1/0 टाइप की, which will be infinity, or just it is not a nice form to have, right? So what is the condition that defined? We can say that it is defined polynomial function of x. Okay, polynomial functions of x. Okay, so like
here this is a polynomial function of x. अगर मैं यहाँ पे लिख देती some other variable fz, तो say z square plus 1, this is a polynomial function of z. तो ये लिखा है कि fx मतलब polynomial function of x, gx मतलब polynomial functions of x. तो दोनों सेम वेरिएबल को होना चाहिए, तभी मैं उसको रैशनल फंक्शन बोलूंगी. Polynomial functions of x defined in a domain where gx is not equal to 0. Right? So this is very, very important. कि रैशनल फंक्शंस पूरे आर में डिफाइन नहीं होंगे, वो हमेशा डिफाइन नहीं होंगे पूरे आर में, वो सिर्फ वहीं डिफाइन होंगे जहाँ पे मतलब जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नॉट जीरो. तो उससे मेरा क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स 1/x, तो डोमेन क्या होगा इसकी, ये हर आर के डिफाइंड है. ये रैशनल फंक्शन है सबसे पहले. रैशनल फंक्शन बिकॉज यहाँ पे एफ एक्स क्या है 1, विच इज अ पॉलिनोमियल. 2 पॉलिनोमियल है, क्योंकि ए नॉट क्या है 1, बाकी ए आई क्या है, ए आई मतलब आई इक्वल्स टू 1 to n, वो सब 0 है, लेकिन ए नॉट 1 है. दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड अ कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल. एंड यहाँ पे जी एक्स क्या है x, विच इज अगेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि अगेन x की पावर पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव नेचुरल है 1, और ए नॉट क्या है 0, ए वन क्या है 1, और बाकी सब 0. तो अगेन रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है. एंड एफ एक्स क्या है, 2 रैशनल्स का डिवीजन है, तो एफ एक्स इज अ रैशनल फंक्शन. एफ एक्स क्या है, तो पॉलिनोमियल का डिवीजन है, तो एफ एक्स का रैशनल फंक्शन. अब डोमेन क्या हो गया इसकी, एफ एफ हर एक्स पर डिफाइंड है, लेकिन जैसे मैं एक्स को 0 करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 इंफिनिटी. वी डोंट वांट. तो डोमेन ऑफ एफ क्या है आर, लेकिन आर में से मुझे क्या माइनस करना है 0. हर एलिमेंट हर आर के एलिमेंट पे डिफाइंड है एक्सेप्ट 0. तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन, also sometimes it's called domain of definition. डोमेन ऑफ डेफिनेशन मतलब जहाँ कौन से एक्स के लिए एफ डिफाइंड है, that's where the name is coming. Okay, if r minus 0, एफ एक्स क्या है r minus, डोमेन क्या है r minus 0, राइट. ऑल्सो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यू नो दिस इज अ रेक्टेंगुलर पैराबोला. आई थिंक कैन प्लॉट दिस यूजिंग maybe asymptotic nature, or I don't know. This is not in the scope of the course for me to tell you how this domain is this function is coming. You can just simply take the uh, values of x and plot values of fx. You should get this. So this is the function fx equals to 1/x. अब इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या है उसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू. तो मैं एक्स को कुछ भी लो, एक्स को कुछ भी लो, एफ पूरा का पूरा कवर कर रहा है आर को. मतलब अगर रेंज क्या है एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब 1/x, एक्स बिलोंग टू. अब ये 1/x में एक्स को कुछ भी लेती रहूं, ठीक है, तो ये 1/x पूरे आर को कवर कर लेगा, लेकिन 0 को नहीं कर पाएगा. मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belong to R such that 1/x is 0. So range of f क्या आ जाएगी, मतलब रेंज के लिए हमें क्या करना है कि मैं कोई भी पॉइंट लूंगी, आर्बिट्री पॉइंट से y belong to R. तो मैं देखना चाहती हूँ कि
क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है इन r minus 0 domain of f में से such that fx equals to y? Does there exist x belong to r such that fx equals to 1? Yes, but you just have to reciprocate. fx क्या है 1 by x, y तो x क्या होगा 1 by y. तो मैं कोई भी r सेगमेंट लूंगी, मैं और f of 1 by y करूंगी, f of 1 by y क्या हो जाएगा y, राइट? तो लेकिन किसी भी मैं कुछ भी ले लूं यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आए, तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी r minus 0. डोमेन भी r minus 0 और रेंज भी r minus 0. Yeah, one more example can be just to tell you even so that I think come here. Okay, yeah. So we can do one more example where domain, हम अभी सिर्फ डोमेन की बात करते हैं, रेंज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो डोमेन क्या है? बस हम सबसे पहले एक ऐसा टाइप का फंक्शन है, देखते ही यू शुड रिकॉग्नाइज दिस टाइप ऑफ फंक्शन. ओके, तो ये अगेन पॉलिनोमियल डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. तो क्या है? रैशनल फंक्शन, राइट? नाउ डोमेन क्या है? डोमेन के लिए हमें बहुत सारे एक्स लेने हैं सच दैट डिनोमिनेटर से g, और well I write it mathematically. Domain of f क्या है? In this case, all those x belonging to R such that gx is not equal to 0. This gx मैं किसको बोल रहा हूँ? Let gx is x square plus 9. तो बहुत सारे x belong to R such that x square plus 9 is not equal to 0. Now see, x square plus 9 क्या 0 हो सकता है कभी? अगर सपोज x स्क्वायर प्लस 9 0 है, तो x को क्या होना पड़ेगा? -9. x स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा? -9, विच इज नॉट पॉसिबल. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द साइन कॉन्ट्राडिक्शन कि ये हमेशा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ हमेशा नेगेटिव होगा, ये कभी नहीं हो सकता. तो x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 9 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x. तो मतलब ये कंडीशन हमेशा होल्ड कर रही है हर एक के लिए. तो ये क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा अगर. तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? पूरा R. तो मेरा मोटिव क्या था ये डेफिनेशन देने का? देयर आर रैशनल फंक्शन जो हर R पे डिफाइंड है. जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट करे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन को जो रैशनल फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा हो, या ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन की रेंज में 0 आ रहा हो. यहाँ पे कुछ फंक्शन है जिनकी रेंज में 0 नहीं आ रहा. जैसे ये फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 9, इसकी रेंज में 0 नहीं आएगा क्योंकि कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिसको मैं डालूं x स्क्वायर प्लस 9 में मेरे को 0 दे. क्योंकि अगर कोई होती, मैंने मान लिया अगर कोई होती, तो मेरे पास उसको क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है? x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर को क्या होना पड़ता है? -9. लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है एज लॉन्ग एज वी आर इन द रियल सेट. ऑलराइट, so far so good. So till now we have talked about a constant function. हर x पे एक सेम वैल्यू ले रहा है. आइडेंटिटी फंक्शन, कोई भी x डालूं, f लगाऊं उस पर, तो सेम ही वैल्यू देते मुझे जो x की है. दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन फॉर यू, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर कॉम्बिनेशन, और द एडिशन ऑफ the multiples of powers of x, or and powers of x are non-negative integers. और रैशनल फंक्शंस दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करके. और इसमें मेन बात याद रखने की क्या है कि जो डिनोमिनेटर है रैशनल फंक्शन सिर्फ वहीं पर डिफाइन होता है जहाँ पे
डिनोमिनेटर नॉट जीरो, जैसे वो जीरो हुआ तो मेरे पास 1/0 टाइप की फॉर्म बन जाएगी, विच आई डोंट वांट, विच इज अ नॉट डिफाइंड undefined form. Okay, so I just summarized it for you guys. So next very interesting function is a modulus. ये भी आप लोग, I think you this has also you have, must have encountered this function multiple number of times uh, in mathematics. So proper definition क्या है? The function f from r to r defined by fx equals to modulus of x. मॉडुलस क्या करता है आप लोग को पता है? -3 का मॉड 3, 3 का मॉड 3, तो मतलब क्या दे रहा है वो? मैं कुछ भी मॉडुलस में डालूं मुझे उसका पॉजिटिव करके दे देगा, राइट? तो इसको मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका है? fx क्या है? x when x is पॉजिटिव, लेकिन fx क्या है? माइनस ऑफ x when x is नहीं. अब नाउ पीपल गेट वेरी वेरी कंफ्यूज दैट यहाँ पे तो माइनस आ रहा है तो ये तो नेगेटिव हो गया. नो, यहाँ पे क्या है? x लेस देन 0 है तो माइनस x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन. एक नेगेटिव उसके पास पहले है क्योंकि x खुद नेगेटिव है, एक नेगेटिव मैंने लगा दिया तो वो पॉजिटिव बन जाए. ठीक है, तो जस्ट कीप इन माइंड कि मॉड x कैसे डिफाइंड है. अगर तो x पॉजिटिव हुआ तो मैंने सेम लिख देना x, लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो मैंने एक इसके साथ और नेगेटिव लगा देना टू गेट fx. मतलब जैसे अगर fx अगर से, so you see that it is very similar to the identity function for x positive. So मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर x 3 है तो मॉड x क्या हो जाएगा? x पॉजिटिव है, इस रेंज में लाई कर रहा है तो मॉड x का 3 सेंड किया. लेकिन अगर x -3 है, अब x लेस देन 0 होगा तो fx क्या बोला मैंने? f है माइनस ऑफ x और x क्या मेरा 3. So this is 3 and this is what you have been doing all through your uh, 9th and standard, right? So this is what is the modulus. अब इसको plot, let's try to plot. तो फर्स्ट नोट दैट कि ये फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फॉर x पॉजिटिव अलग बिहेव कर रहा है, x नेगेटिव अलग बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो पहले हम x पॉजिटिव के लिए देखते हैं क्या है कि अगर x पॉजिटिव है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -4. ठीक है, पहले मैं सबसे पहले तो 0 पे क्या है? x इक्वल्स टू 0 यहाँ है तो क्या हो रहा है? f ऑफ 0 क्या है? 0. तो 1 पॉइंट क्या आ गया? 0 0 जो ग्राफ पे लाई करेगा तो 0 0 इज -1 -2 -3 एंड -4. तो लेट मी चेंज द कलर तो 0 0 ग्राफ पे लाई करेगा. ठीक है, अब f ऑफ अगर मैं x को 1 ले लूं, x को 1 ले लूं, 1 क्या है? पॉजिटिव, और f ऑफ 1 क्या है? जब पॉजिटिव है तो f क्या कर रहा है? x के साथ सेम ही रिटर्न कर रहा है तो f ऑफ 1 क्या है? 1. तो एक पॉइंट क्या आ गया? x1 तो f 1 1 भी ग्राफ पे लाई करे. ठीक है, अब अगर x को मैं -1 ले तो f ऑफ 1 क्या है? इधर रेंज में इस वाले स्टेप में चला गया, केस में चला गया. -1 क्या है? लेस देन 0. f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? जब x लेस देन 0 है, f क्या कर रहा है x के साथ? एक नेगेटिव के साथ x दे रहा है. x क्या? -1 एक नेगेटिव के साथ x दे रहा है तो माइनस ऑफ माइनस f है 1.
तो पॉइंट क्या जाएगा, x-1 और 1 -1, 1 भी ग्राफ पे लाई करेगा। तो क्या होगा, ये x लिया मैंने माइनस x लिया मैंने 1 और x लिया मैंने -1 और y क्या हुआ 1। ठीक है, सिमिलरली x को 2 लूंगी तो f क्या देगा उसको वापस 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। 3 लूंगी x को तो f y क्या दे देगा, y प्लस f क्या देगा वापस 3। 4 लूंगी f को x को तो 3, और इधर अगर -2 लूंगी मॉड के साथ वो उसको प्लस कर देगा 2, उसको प्लस कर देगा 2, तो प्लस कर देगा -4 लूंगी तो f क्या करेगा उसको, ये x एक्सिस है और यहाँ पे y इक्वल f x प्लॉट होता है। ओके, आई डिड नॉट मेंशन इट और समथिंग कि यहाँ पे y जो है कोऑर्डिनेट उसको हम f x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हम y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब जो ये कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है वो एफ एक्स डिपिक्ट करता है। ठीक है, दिस इज अगेन वन ऑफ द डिमेंशन। तो ये सब पॉइंट हमने देख लिए, तो अब इन सबको ज्वाइन करना है। तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन इधर और स्ट्रेट लाइन इधर, राइट। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से पास करिए, 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, -1 1 -2 2 -3 3 और -4 4। ठीक है, ये आगे इंफिनिटी तक जा सकता है क्योंकि मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ लेफ्ट और राइट, राइट। और just remember that fx equals to mod x looks like this. This is the graph of fx equals. Okay. All right. Next is signum function. सिग्नम फंक्शन क्या है, नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड साइन। मतलब कि अगर मुझे एफ पे नहीं, अगर मुझे किसी एक्स पे सिग्नम फंक्शन की वैल्यू पता है तो मैं उस वैल्यू से डिटरमाइन कर सकती हूँ कि एक्स का साइन क्या है। सो द फंक्शन एफ फ्रॉम, ओके, तो द मेन क्या है मॉड फंक्शन की, हर एक्स के लिए डिफाइंड है। तो मेन क्या होगी आर, रेंज क्या होगी, पूरा रेंज दे देगा, नहीं, रेंज क्या है, क्या क्या किसी भी एक्स के लिए एफ नेगेटिव हो रहा है, नहीं, हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, ऊपर रह रहा है, राइट। तो रेंज क्या है आर प्लस, ठीक है। तो रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या है, 0 से इंफिनिटी, ओके, नॉट होल ऑफ आर। कभी भी एफ किसी भी एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, तो रेंज क्या है पॉजिटिव रेंज, राइट। ओके, so the function f from r to r defined by fx equals 1 when x is positive, 0 when x is 0 and -1 and x is less than। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ ये पता है कि f किसी पॉइंट पे 1 ले रहा है वैल्यू, तो मुझे पता है कि x क्या होगा पॉजिटिव, अगर -1 ले रहा था x क्या होगा नेगेटिव होगा, 0 ले रहा था x 0। That's why it's called signum function, that it can determine the sign of the maybe the, you can say, the input for. So I'll wait for 2 minutes, please. You should be able to plot it now. Just see what
पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए देखो क्या वैल्यू ले रहा है, उधर प्लॉट करो, फिर 0 पे देखो क्या है, और फिर -1 पे देखो, लेस देन 0 पे देखो क्या है. Try to plot it. You should be able to do it now. क्या हो रहा है? Again, 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2. Just let it be -2, -3 and minus, right? तो क्या हो रहा है कि अगर सबसे पहले तो 0 पे क्या है, अगर x को 0 लिया तो x क्या है और y क्या है 0, राइट? तो 0 0 पॉइंट होगा जो ग्राफ पे लाई करना पड़ेगा. अब जो सबसे पहले नोट करो, जो पॉइंट्स ग्राफ पे लाई करते हैं उसको हम फिल्ड सर्कल से डिनोट करते हैं, और अगर कोई पॉइंट जो ग्राफ पे नहीं लाई कर रहा है उसको हम होलो सर्कल से, नॉट लाइंग ऑन ग्राफ, तो हम होलो सर्कल से डिनोट करते हैं. और उसकी जरूरत कब पड़ती है अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो 0 0 है, मतलब मैंने उसको फिल करा है, तो मतलब ये 0 0 ग्राफ पे लाइक कर रहा है. ये एक डिस्क्रीट पॉइंट हो रहा है, राइट? ये अलग से है 0 0. उसके बाद जब x पॉजिटिव है, जब जब मैं x इधर से लूंगी तो मेरे पास y क्या देगा 1. ओके, तो किसी भी x पॉजिटिव के लिए y बनेगा. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस ग्राफ. क्या? अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ही छोड़ दूं, इफ आई लीव द ग्राफ एज इज, कि x, या ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर, और जब x नेगेटिव है, जब मैं x को इधर से लूंगी तो क्या दे रहा है fx वैल्यू माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस, राइट? बट इस ग्राफ में प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? इफ यू सी, अभी इस ग्राफ से क्या लग रहा है कि 0 पे वैल्यू 0 भी है और 0 पे वैल्यू 1 भी है और -1. बट ऐसा तो नहीं है, 0 पे वैल्यू सिर्फ 0 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉलो सर्कल बना देंगे. यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बना देंगे, मतलब कि वो 0 पे वैल्यू 1 नहीं ले रहा है और ना ही -1 ले रहा है, बल्कि 0 पे वैल्यू 0 ले रहा है. और लेकिन जैसे मैं 0 से थोड़ा सा आगे मूव करूंगी, वो वैल्यू क्या लेने लग जाएगा, बिल्कुल ही थोड़ा सा आगे मूव करूंगी तो वैल्यू क्या लेने लग जाएगा 1. तो इसलिए ऐसे ग्राफ्स में जहाँ पे कंटिन्यूटी काइंड ऑफ ब्रेक हो रही है, कि सिर्फ एक पॉइंट पे मुझे पता है कि उधर वैल्यू 0 नहीं, जैसे यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1 नहीं ले रहा है, लेकिन 0 से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी तो वो वैल्यू 1 लेने लग जाएगा. तो उसको दिखाने का क्या तरीका है कि हम 0 पे एक हॉलो सर्कल बना देंगे जो बताएगा कि 0 पे वैल्यू 1 नहीं ले रहा है, और ये फील्ड सर्कल है वो ले रहा है 0 पे बस. ठीक है, अब इसकी डोमेन क्या है? पूरा आर है, हर हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है. लेकिन रेंज क्या है? क्या सारी वैल्यूज ले रहा है आर में? मैं कोई भी एक्स लूं, क्या एफ सारी वैल्यू ले रहा है आर में? क्या किसी एक्स के लिए वैल्यू 2 आ रही है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है फॉर एनी एक्स? नहीं.
वैल्यूज क्या है? सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर, -1, 0 और 1. तो रेंज क्या है? A set which contains these 3 elements is the only range. Okay. Also, you can write also signum function as fx equals x by mod x for x not equal to 0 and 0 for x equals. मतलब मैंने क्या करा? सिर्फ 1 और -1 वाले को कंबाइन कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूंगी, मॉड को ओपन करूंगी, मॉड कैसे खुलता है? पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए. अगर x पॉजिटिव है तो मॉड कैसा हो जाएगा? x. तो x पॉजिटिव के लिए ऐसा हो जाएगा. तो x नेगेटिव है तो मॉड कैसे हो जाएगा? -x, x लेस देन 0, 0 पे 0. तो ये सेम आ गया 1 -1. So this is also one of the methods to write the signum function x by x. Okay. Okay. So these were some of the examples. We started with the constant, then moved to identity, rational, polynomial, modulus, and signum. Please just try to revise these, because these appear all the time. As I said, in mathematics, the permutation combination of these type of functions, like you can define a function fx equals x by mod x plus 2. So this is a polynomial, this is a modulus, right? These are very, very common. So one last example is, I don't think I'll have the time to explain this because it is a little tricky. Greatest integer. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेता है? अगर x को प्लॉट, x का वैल्यू देखना है तो x सबसे बड़ा इंटीजर विच इज लेस देन दैट x. मतलब अगर x क्या है, से 1.2, तो सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.2 से कम है वो क्या है? 1.2 इधर है 1. तो fx क्या आ जाएगा? 1. और इसको हम notation है square bracket. I plot the graph in the next class. Even you should try plotting this. X को vary करो और देखो graph कैसा आ रहा है. So I'll do this in detail in next class, greatest integer function, and then we'll do algebra functions, maybe, and then we'll focus on the questions that involve domain, finding the domain and range of the function, and also some plotting questions. Okay. Okay, so I think that's it for today. Thank you. We'll meet in the next class.